Beta, firstly, you have to be a valid KYC document with you, like PAN, Aadhaar. As you are minor, so you don't have any PAN card, then valid ID will be Aadhaar. है ना? So, firstly, if you approach any bank, then you have to open an saving bank account with that bank. ओके अगर आप अप्रोच करते हो किसी बैंक को तो आपका सबसे पहले बचत खाता वहां पे होना चाहिए। आपका बचत खाता रहेगा तो आपकी फर्स्ट स्टेप होती है बैंकिंग से जुड़ने का। अब बचत खाता आपका हो गया तो उस पर क्या क्या सुविधाएं मिलती है आप लोगों को मालूम है? नहीं, बैंक आपको पासबुक देती है, एटीएम कार्ड देती है, और आप लोग नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन पे भी चलाते होंगे। कई लोगों ने देखा होगा, आप तो नहीं चलाते होंगे, आपके फैमिली में मम्मी पापा चलाते होंगे, वो फैसिलिटी भी है। उसके बाद सबसे मेन फैसिलिटी क्या है आपकी? अगर आप बैंक से जुड़ते हो, सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा। आप ये बताओ, आपके पास पैसा अगर आप अपनी नो और बैंक पे रखोगे तो बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा बताओ? कैसे बढ़ेगा बताओ? आप लोगों ने बोला बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देती है ना? बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देती है। अगर आप आपके पास पैसा रखोगे तो हो सके आपको जरूरत ना भी पड़े तो आपका पैसा खर्चा हो जाएगा। How much interest? How much interest? 2.25% in saving account quarterly. Which account? In saving. Saving account. In saving for student saving. Saving. Yes. Yes. Saving, especially in Yuva. And in Yuva, there is no charges for ATM or for minimum balance. You can maintain at zero balance also. And for Sir, student, we also open in Yuva for students. So why you take charges on SMS charges, cash handling charges, and ATM No, charges? it's our bank policy. Not a branch policy. It's our bank policy. Basically, cash handling charge is government's policy. They definitely wants to promote digital transactions. Hence, they reduce cash charges, cash transaction. How they reduce cash transactions? Just by applying charges. In future, if anytime, if you came bank to deposit the amount and a certain amount is deducted, and you will inquire us that sir, what is this charges? Then we will explain to you that you have carried the cash and deposited in your savings account. That's why we have charged cash handling. Next time, what will you do? You will not accept the cash from the customers or any other customers. What will you force to do? You will क्या कहना चाहिए? यू विल कैरी डिजिटल ट्रांजेक्शन, है ना? आप क्या करोगे? डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को अपनाओगे। तो ये क्या करेगा? हमारा डिजिटल ट्रांजेक्शन, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स पे कहना चाहिए, जो भी हम लोग पैसा छुपाते हैं या हम लोग टैक्स बचाते हैं, वो चीजें सीधा डायरेक्टली गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगी, है ना? तो इसके बहुत से है, मतलब जो बैंक चार्जेस लगाते हैं उसके बहुत से इम्पैक्ट रहते हैं, अपने पे नहीं, इकोनॉमी में, जो कि इकोनॉमी को पीछे खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, what we can do for become bank manager? Just do study well. And what subjects you can ask? Yes. Any subject, any subject. Yeah. Just study well in any subject. सर आपका एक्सपीरियंस बताइए, आप किस तरह से इंस्पायर हुए कि मुझे बैंक मैनेजर बनना है, उसके लिए आपने क्या किया? नहीं, जस्ट Struggle in your childhood. मेरे बड़े भैया बैंक में थे, उस समय मैं स्टडी करता था, उनको भी देखा, तो जस्ट इंस्पायरेशन मेरी भैया से आई। आप भी देख सकते हो, आपके घर में जो भी हो, बैंक मैनेजर हो या आपके घर पड़ोस, या आप भी देखते होंगे आपके टीचर से, आपको भी कई बच्चों को लगता है कि आगे चल के मेरे को टीचर बनना है। मतलब इंस्पायरेशन अपनी किसी से भी आ सकते हैं, फैमिली मेंबर से, अपन जिनसे मिलते हैं, दोस्तों से, दोस्तों के भाइयों से, या अपने विलेज में जो भी हो, आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो, जिससे अपने को चाहे। Sir, one more question for you. How many employees here?
We are 4 employees in it. What work they do? All banking works. Like that. Post. Like that, carry out the transactions of cash, NEFT, RTGS transaction. Huh? First one is cashier, second one is officer, third one is daftari, fourth one is me as a branch manager, and fifth one is our temporary staff. They all carried all type of banking transactions. Okay. Yes. Thank you, sir. Thank you. In future, if you need any guidance from us, then we are ready to provide you with students. Okay? सर वन मोर क्वेश्चन, Yes. बैंकिंग सुविधाओं को लेने के लिए हमें क्या सावधानी रखना है, या बैंकिंग अपने अकाउंट में मैनेज करने के लिए क्या frauds are सावधानी देखिए, रखना है? main- डिजिटल ट्रांजैक्शन मेन जो अपना फोकस है आजकल आप देख रहे हो, साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं, Yes. है ना? तो जनरली किसी भी व्यक्ति को ओटीपी ना दे, Got it. Yes, और sir. कोई भी अननोन लिंक आती है ना, जैसे अपन मोबाइल यूज करते हैं, अपन ने देखा कोई नंबर से मैसेज आया, कोई इमेज आई या कोई वीडियो आया, अपन सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड नहीं करना, वही पता है क्या होता है, एक वायरस होता है। आपने डाउनलोड किया, आप जहाँ पे मोबाइल पे जो जो चीज चला रहे हो, पासवर्ड टाइप कर रहे हो, सब चीज कर रहे हो, सामने वाला आपका पूरा देख सकता है। आपके पास नहीं बैठा, लेकिन आपके मोबाइल का एक्सेस उसके पास चले जाता है। आप भले ही उसको ओटीपी नहीं भी दोगे, आप क्या टाइप कर रहे हो उसके पीसी में सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले अननोन मैसेजेस ओपन मत कीजिए। ओपन कर लिया, तुरंत डिलीट करके उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। सेकेंड वन, अगर कोई भी अननोन पर्सन आपसे मोबाइल पे ओटीपी मांगता है, वो हो सकता है कह दे कि मैं आपका भाई बोल रहा हूँ, आपका पापा बोल रहा हूँ, या आपका पापा के रिलेटिव बोल रहा हूँ, किसी भी तरह से वो आपसे प्रेशर करते हैं कि भैया हमको ओटीपी दे दो। कभी मत देना। आपका मोबाइल हो, घर वालों का हो, किसी का भी हो, वो आप पे प्रेशर डालते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, सबसे पहले आप काट दो मोबाइल। आप किसी भी अपने पड़ोसी के पास चले जाओ, या आपके नियरेस्ट जो भी व्यक्ति है उनके पास जाओ, उनके मोबाइल से दोबारा कॉल करो, उधर अपने मम्मी पापा जिसके भी नाम से फोन आया, उनसे पहले कंफर्म करो कि पापा ऐसा ऐसा फोन आया, वो ये चीज मांग रहे थे, ऐसा ऐसा है, तू कि नहीं। पहले उस चीज की गहराई तक जाइए, है ना, डीप में जाइए कि क्या है क्या नहीं एक्चुअल पे, फिर अपन आगे बढ़े। दो चीज, अननोन मैसेजेस ओपन नहीं करना, दूसरा ओटीपी नहीं देना। Got it. सर Yes, सपोज sir. हमारे साथ में फ्रॉड हो चुका है, हाँ। उसके बाद हम क्या एक्शन लें, क्या steps सबसे पहली स्टेप है साइबर क्राइम को कंप्लेंट कीजिए, सबसे पहले, है ना। फर्स्ट स्टेप है साइबर क्राइम को कंप्लेंट कीजिए। सेकंड, जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है वहां पे भी एक रिटर्न एप्लीकेशन, है ना, दोनों जगह से प्रोसेस होनी चाहिए। चलिए, और Okay. सर Thank हमें you. लोन Thank you, चाहिए sir. तो कैसे अप्लाई करें? अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल, एक्स्ट्रा कुछ उसके लिए मैं हूँ, बिल्कुल। उसके लिए बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ। सर कौन से लोन प्रोवाइड हो जाते हैं? ATM and banking machine. Yes. बारकोड वाली पासबुक मिलेगी, सिर्फ पासबुक डाल के प्रारंभ पे क्लिक करना है, अपने आप पासबुक अंदर जाएगी, एंट्री होके निकल जाएगी। सिंपल है, इस पे और कुछ नहीं, है ना। बारकोड वाली पासबुक आएगी, इस पे रखिए, क्लिक कीजिए, बारकोड रीड करेगा, आपकी पासबुक एंट्री करके आपको दे देगा, और कुछ नहीं करना है। और एटीएम आप जानते हैं, एटीएम कार्ड डालना है, ओटीपी किसी को नहीं बताना है। दिस इज डिपॉजिट स्लिप और दिस इज विड्रॉल स्लिप। सर इसमें सिग्नेचर क्या महत्व है? डिपॉजिट पे महत्व नहीं है, विड्रॉल में महत्व। विड्रॉल में हाँ, महत्व है। डिपॉजिट कोई भी कर सकता है, और चेक आप कर में? सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर कर सकते हैं। विड्रॉल लेकिन कस्टमर ही करेगा, जिनका अकाउंट। विड्रॉल सिर्फ महत्वपूर्ण है कभी Any भी। nominee can be, that can be. In case of that, nominee is eligible to withdraw the money, but in his or her saving account. Okay. Okay. Thank you. Thank you so Uh, much. Thank you, sir. Thank you. Let's take the photo of it. But sir, is